पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने एक स्पीच दी है जिसके ऊपर आजकल थोड़ा ज़्यादा बवाल हुआ है। जनरली जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ पे फोकस नहीं करता, और एक इन जनरल मेरा कोई बहुत सुपर क्रिटिसिज्म वहाँ के लोगों के प्रति नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे जो कल्चर है एकेडेमिया का, या फिर जो भी ऑनलाइन एकेडेमिया या यूट्यूब पे जितना भी डिस्कशंस होती हैं उसमें, तो उसमें ऑलरेडी इतनी बातें होती हैं, मुझे लगता नहीं है कि आई डोंट नो मैं उसमें कुछ बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इन एनी केस उनके जो आर्मी चीफ है उनकी स्पीच के ऊपर थोड़ी सी बलवा हुआ है बलवा एज इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें हो रही हैं। उसमें श्याम शर्मा की एक वीडियो है, वो देखते हैं। So, Pakistan's Army Chief General Asim Munir recently did the unthinkable, told the truth, and for that, I am grateful. To the great chagrin and disappointment of the Aman Ki Asha Brigade, one of the most important and influential people in all of Pakistan said what I think all Indians have known all along, but some Indians love to pretend that it's not the truth. So Asim Munir recently completely and utterly endorsed the two-nation theory, and he said the entire rationale for Pakistan is based on this two-nation theory. The two-nation theory that believes that Hindus and Muslims are fundamentally two different nations and civilizations. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. He said that we are different from Hindus in every possible aspect of life. Now, some people were outraged at arguably the most powerful person in Pakistan making this statement, but I, for one, am thankful to him, because he has made the Aman Ki Asha Brigade more uncomfortable than a JNU student at a Hindu festival. Because after this statement, spare a thought for the makers of Mehuna, where the villain is the Indian army officer who doesn't want peace and the Pakistanis just want to get along. Spare a thought for the makers of Pathan and Ek Tha Tiger, where the Pakistani army and the ISI is actually trying to help India in protecting their national security. Spare a thought for the makers of Bajrangi Bhaijaan, where they'll tell you that the only thing that Pakistanis have in their hearts towards Indians is love. I'm glad that that love is finally being expressed so openly by the chief of the Pakistani army. I'm glad that this has been said, because every few years there's an attempt at rapprochement with the Pakistanis, with either talks of Indian-Pakistan matches or trying to invite Pakistani singers and actors to come work in Bollywood. I hope this statement by Munir puts to bed all of that nonsense, because remember, these cricketers and artists are often hand in glove with the Pakistani army. They've publicly praised the Pakistani army on multiple occasions. And here's the head of the Pakistani army, the most influential and powerful organization in Pakistan, openly stating the official Pakistani position on India. And look, we have to give credit to Pakistan where it's due. Because ओके, थोड़ी बातें दो चार हो गई हैं, उसमें से एक एक करके सुलझा लेते हैं। तो बेसिकली जो ये स्पीच थी, मैंने देखा था थोड़ा बहुत इस पे द प्रिंट पे, जो शेखर गुप्ता का चैनल आता है, कट द क्लटर प्रोग्राम आता है, आई मीन उसके ऊपर इन्होंने बात की थी स्पीच के ऊपर। और जितना मुझे समझ आया वो समझ आया जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से ये एक इनके फॉरेन में जो रहने वाले लोग हैं, एनआरआई जैसे इंडिया में होते हैं, तो अगर आप एनआरपी कह लो, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ही थी। उनको एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया होगा, जितने भी भाई बाहर रहते हैं वहाँ पे स्पीच दी जाएगी। पहली बात तो मैं सोच रहा था कि एक आर्मी चीफ क्यों दे रहा है ये स्पीच, जो कि कोई बड़ा इसके पीछे राज नहीं छुपा हुआ। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो शासन है उसकी जो फाइनल द बक स्टॉप्स विद हु एवरीबडी नोज, तो वही दे रहे थे अपनी स्पीच। दूसरी चीज़ मैं इन्होंने कही कि लेफ़्ट के मुंह पे मतलब ये एक थप्पड़ है। लेफ़्ट को शर्म नहीं आती इंडिया का जो लेफ़्ट है ना, देखो, शर्म दिलाने का फ़ायदा ही उसको है जब जिसको शर्म आती हो। और एक बड़े समझदार आदमी ने एक बार एक बात कही थी कि शर्म एक ऐसी चीज़ है जो जब तक महसूस ना करो ना तब तक वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो जो लेफ़्ट है उसको शर्म महसूस नहीं होती। मैं लगभग पहले एक
एक पूरे सेशन में लगभग 10 के आसपास, और पिछले कुछ दिनों में 2 या 3 वीडियोस बना चुका हूँ कामरा को एक्सपोज करते हुए कि कैसे वो एक हेटफुल इंसान है, ना उसका कोई लॉजिक है ना कुछ है। बेसिकली वो एक पार्टी की तरफ से बैटिंग करता है या फिर एक पार्टी के अगेंस्ट बैटिंग करता है बाकी सारी पार्टियों की तरफ से, और जो कि पूरा का पूरा टोला ही चोरों का है, चोरों का, मिसक्रिएंट्स का, उनके बारे में जो ही शब्द यूज़ कर लिया जाए वही कम है, उनका टोला, और उनकी तरफ से वो बैटिंग करता है। और जो एक रिलेटिवली डिसेंट साइड है पॉलिटिक्स की, उसके उसके अगेंस्ट बैटिंग करता है। और पूरा लेफ्ट और उसके जो सपोर्टर हैं किसी बात का लॉजिकली जवाब नहीं देते, किसी बात का कुछ नहीं करते, रेटरिक फेंकते हैं, ठीक है, बस आगे आपको अक्यूज़ करने लग जाएंगे। तो शर्म हमको मगर नहीं आती, ये जो उन्होंने अपनी जीवन के अंदर एक अपनाया हुआ है लाइफस्टाइल, इस लाइफस्टाइल की वजह से जो शाम आपको लग रहा है कि इनको इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ खा के भी हंसने वाले लोग हैं एक और मार लो। वो एक कौन सी मूवी थी यार, कौन सी मूवी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो पुलिस वाला, सेकंड पार्ट में राजकुमार राव का एक सीन है, वो पुलिस वाले को यूँ कहता है कि आपको पता है वो लोग क्या बुलाता है पुलिस वाले को, फैजल का भड़वा, ऐसे करके कहता है। तो पुलिस वाला ना सामने से गया क्या बात कर रहे हैं। वो जो एक्टर है ना पुलिस वाला, उसने इतना सही सीन किया है बेशर्मी का। तो लेफ्ट का वही हाल है, उनको आप बोलोगे ना भाई ये बोल दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, अब क्या कहना है, तो वो सामने से ही करेंगे क्या बात कर रहे हैं, वही उसी पुलिस वाले की तरह, गैंग्स ऑफ वासेपुर के पुलिस वाले की तरह। तो उनको शर्म नहीं आएगी। और जो बॉलीवुड मूवीज़ ये भी बनती रहेंगी भाई, ये प्रोपेगेंडा ना हमें बहुत सालों से, डेकेड्स, 50 साल हो गए अब, तब से ये धीरे धीरे ये हल्का जहर पिलाए जा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये चुतिया आप कोई नहीं मानता। बंदे ज़्यादा से ज़्यादा अगर मूवी पसंद आती है तो मूवी देख के आ जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, घंटा किसी को विश्वास नहीं है इन थ्योरीज पे जो पेली जाती हैं इन मूवीज़ की तरफ से। वो कुछ जो नहीं होते, जो डेलिकेट घरों में, डेलिकेट एनवायरनमेंट में पैदा हुए बच्चे होते हैं, जिनको लेफ्ट की थ्योरी पसंद ही उसको आएगी जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल देखा ना हो। हिंदुस्तान की अच्छी किस्मत ये है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रगल देखा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर लोग मुंह नहीं लगाते इस तरीके की थ्योरीज को। वही जो थोड़े बहुत अमीर घरों से आए हुए छोटे छोटे अच्छे अच्छे सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए जो लोग हैं, उनको ही ये जो लेफ़्ट की थ्योरीज़ हैं और अमन की आशा पाशा, ये सब उनको ही पसंद आता है। जो बंदा ग्राउंड पे रहता है, जिसको रोज़ ट्रैवल करना होता है, जिसको पब्लिक में जाना होता है, उसको डर लग रहा होता है भाई। एक टाइम ऐसा था कि कहीं भी कुछ भी फट सकता है, ठीक है, पब्लिक में। तो उस लेवल पे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं मेजॉरिटी, वो नहीं बुंड मारते इनकी। The Pakistanis have never been confused about this. It's the Indians that have always been confused about this. इंडियंस का वोक लेफ्ट का एक छोटा तबका, When Pakistan was और वो लाउड तबका, इसलिए वो बहुत लगते हैं, वो ज़्यादा है नहीं वैसे। created, leaders like Iqbal and Jinnah didn't say that they wanted a new country for a better economy or for some petty political reasons. No, their core argument was Islam and Hinduism are completely different from each other, and that Muslims simply cannot coexist with the Hindus. This is ये तो इनके शुरू से यार, अगेन इनका तो शुरू में बिगिनिंग में आर्ग्यूमेंट ये था, कभी वहाँ से ये हिले नहीं। अभी भी इनका सेम आर्ग्यूमेंट ये आर्मी चीफ ने आके रिकन्फर्म कर दिया। अब हमारे लोग जब आगे बढ़ बढ़ के मानने के लिए तैयार हैं, तो उनकी गलती थोड़ी है, उनको तो हमें थैंक यू लेटर लिख के भेजना चाहिए, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने रिआइट्रेट कर दी अपनी पोजीशन। हमारे यहाँ जो ये टट्टू भरे हुए हैं, इन टट्टुओं को पर ये टट्टू नहीं मानेंगे सर, आप इनको ना एक्चुअली इधर कुछ और कर, कुछ करो इनको यकीन दिलाने के लिए। always been the core belief of the Pakistani state, the Pakistani people, and clearly the Pakistani political and army leadership. But in India, you'll often hear the Aman Ki Asha people saying that talks and dialogue will solve everything. And on the altar of this Aman Ki Asha, these people are willing to offer some very significant sacrifices, like the sacrifice of the Kashmiri Hindus. हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए। Hell, the sacrifice of Jammu and Kashmir itself, as many of these people have offered to cede Jammu and Kashmir to Pakistan in order to build trust. They're willing to sacrifice thousands of lives in incessant terror attacks. They're willing to offer thousands of security personnel's lives in 4 full-scale wars, plus a decade. और यही चूतिए ना, जब स्कूल की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि बुली के आगे खड़ा होना होता है, स्टैंड लेना होता है,
तब जाके बुली आपको बुली करना छोड़ेगा। और यही चूतिए फिर ये बात भी करते हैं। ये बात नहीं है कि वो बुली वाली बात गलत है, वो ये बात है कि इनका स्टैंड सिमिलर नहीं है। अबे कोई जस्ट बिकॉज तुमसे लड़ रहा है एक बात के ऊपर, तो ये थोड़ी है कि वो सही हो गया उस बात में। decades-long terrorist insurgency. But thankfully, a vast majority of Indians are not willing to offer that sacrifice anymore. Exactly, In यही fact, मैं one भी of कह the रहा most venerated figures amongst the Aman Ki Asha crowd, Dr. Bhimrao Ambedkar, was also extremely unwilling to offer any sacrifices on the altar of Aman Ki Asha. In his book, Thoughts on Pakistan, Ambedkar said it loud and clear. He said, Islam is a closed corporation, and the Brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. Ambedkar didn't stop there. He said, the Hindu-Muslim unity is an empty dream. The differences between Hindus and Muslims are not just social or political, they're religious and deep-rooted. He added that Muslims cherish a longing to establish Muslim rule in India again, and that makes this coexistence with Hindus inherently unstable. In short, he believed that Islam doesn't believe in coexistence and mutual respect. It believes in the power of the Ummah, in the power of Islam, and in Islam's complete and utter dominance of the non-Muslims. And another thing that I liked about और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, शाम ने जो ये बात बोली है ना, इस पे मैं 100% बोल सकता हूँ, कोई भी मुस्लिम आके इसको गालियाँ नहीं देगा कि भाई तुम ये बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये वो बोल रहे हो वो। इस पे ये जिनको बोल रहा ना कि ये जो वोक टट्टू हैं, ये वोक टट्टू ही आके इसको बोलेंगे, अबे तुम ऐसे कहते हो, उनको उनको रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट। नहीं भाई, वो नहीं कहते इस चीज़ को कि ये गलत है, वो कहते हैं इस चीज़ को कि हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंग्रेज़ी में अरब यार कोई शेख है, मैं उनका नाम भूल गया, वो साफ पूरा बताते हैं कि हाँ ऐसे होगा पूरी। और ये नहीं है कि मैं पता नहीं CNN वगैरह कहाँ उनकी क्लिप चलती हैं, ठीक है, कि जब ये होगा तो ऐसे होगा, जब हमारी पावर होगी तो ऐसे होगा। भाई जब वो उनका कोर टेक्स्ट बिलीव है तो वो छुपा भी नहीं रहे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि ऐसा है तो कोई एक आपका जो दोस्त है किसी भी नाम का, मेरा बेस्ट फ्रेंड यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल का मुस्लिम था, मैं पूरी फैमिली था, क्या अभी भी दोस्त है, पूरी फैमिली मेरे को जानती है। उसका बड़ा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया बाद में, ठीक है। उनकी फैमिली के साथ मैंने घर में खाना खाया, वो आता था घर पे आराम से, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप सत्य को थोड़ी झुठला दोगे भाई कि हो क्या रहा है। अब इस चीज़ का फ़र्क हमारे आपस के रिलेशन में नहीं पड़ता था, लेकिन अगर आप ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पे देखोगे तो अगर एक ग्रुप का एक सर्टेन बिलीफ है और जो कि ट्रू है कि है वैसा, तो आप उसे झुठला थोड़ी सकते हो जस्ट बिकॉज आप फील गुड और अच्छी विश करने वाले इंसान हो। क्या होता है वो वर्ड में, फ्रेज मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कि विशफुल थिंकिंग, जस्ट बिकॉज आपके अंदर विशफुल थिंकिंग है, ऐसा नहीं होता दोस्त। Munir's statement is that he didn't stop at just expressing this difference. He urged Pakistanis to pass this two-nation ideology to the next generation. And this actually अच्छा, ये मुझे ना थोड़ी आर्मी चीफ जी की साहब की बात थोड़ी फुद्दू वाली लगी वैसे, कि एक बात बताओ यार, जिन बंदों को आप बोल रहे हो ये फॉरेन में रहने वाले पाकिस्तानी, राइट, तो इनके बच्चे ही वहाँ पैदा हुए होंगे, तो आप ये कह रहे हो कि आप इनको बोलोगे हिंदू हमसे लगे, बट वहाँ पे तो कोई कितने हिंदू दिखेंगे उनको? कोई 1000 बंदा मिलता होगा तो उसमें से कोई, मान लो अमेरिका में रहता है कोई पाकिस्तानी बंदा, ठीक है, उसका कितना ही सामना हो लेता हुआ एक हिंदू व्यक्ति से, डिपेंडिंग ऑन अगर न्यूयॉर्क सिटी जैसी जगह पे रहता हुआ या और किसी बे एरिया में रहता होगा जहाँ इंडियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो थोड़े ज़्यादा हिंदू मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसी इन द मिडल ऑफ नोवेयर रहता है, राइट, तो सियाटल में कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन है ठीक ठाक लेकिन बहुत बड़ी ऐसी नहीं है कि आपको रोज़ ही टक्कर रहे हैं, तो वहाँ उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, हिंदू से अलग है, एक है क्या, इससे क्या मतलब अचीव क्या होगा? ये द मोमेंट उन लोगों ने आपकी कंट्री छोड़ दी तो आपका तो जो प्लान था लॉन्ग टर्म, वो तो उन लोगों के एंड तक उसी वक्त फेल हो गया ना। जहाँ तक उन लोगों का कंसर्न है उसी वक्त प्लान फेल हो गया। आपको क्या लगता है वो लोग वापस आके रहेंगे पाकिस्तान में या उनकी अगली नस्लें? तो आई डोंट नो, पता नहीं was भाई my क्या favorite part of the मर्जी। speech and something that gave me a lot of hope. Because this two-nation theory and the Islamic supremacist ideology of Pakistan has worked only and only to economically, politically, and socially devastate Pakistan.
Pakistan is so poor that they're having to give hair dryers to the man of the match in the Pakistani Super League instead of actual money. In fact, you know those "Your Mama So Poor" jokes? You can now crack those exact same jokes and replace Mama with Pakistan. Your Pakistan so poor they can't even pay attention. Your Pakistan so poor pigeons throw bread at them. Your Pakistan so poor they've never received a scam email from a Nigerian prince. Your Pakistan so poor that they have to have sex with an ATM in order to take out money. If you enjoyed these Your Pakistan so poor jokes, please let me know your best Your Pakistan so poor jokes in the comment section down below. So I'm very happy that the Pakistanis are choosing to continue down this path. मैं इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं करना चाहूँगा. मुझे नहीं पता वो लोग इससे अग्री करेंगे डिसअग्री करेंगे, वो कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है. बट कुछ चीज़ें प्रिंसिपल पे होती हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मेरे लिए, गरीब और कमज़ोर को कभी ये मत दिखाओ कि तुम गरीब हो या तुम कमज़ोर हो. ठीक है, वो हैं गरीब हैं. और मैं एक और भी बात बताता हूँ जो शायद इंडिया में हम लोग समझते नहीं हैं, ये वाला रेटरिक देख के कि पाकिस्तान में बहुत गरीबी है. देखो जैसे हमारे देश में ना, इंडिया में जो अमीर है वो दबा के अमीर है, मतलब अथाह पैसा है. ठीक है, और उनके पास दुनिया की किसी भी तरीके की जो भी चीज़ हो सकती है डिज़ायर करने वाली, खाने से लेके गाड़ियों से लेके घर से लेके कपड़ों से लेके जो भी आप सोच सकते हो, राइट, वो सब अवेलेबल है. और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ ऐसे भी है जो रोज़ ज़िंदगी की स्ट्रगल में दिन काट रही है. तो ये दोनों ही सेक्शन हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों ही सेक्शन उनके यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं. उनके यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी कम है उनके मुकाबले. बट हम भी मैं अगर तो हम होते ना किसी एटलीस्ट मिडिल इनकम कंट्री में, एटलीस्ट हमारे यहाँ $15,000 महीने की इनकम होती है एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा पे. 15,000 एक्चुअली हाई इनकम में चला जाता है, लेकिन मैं मिडिल ही मानता हूँ उसे आज के दिन में इन्फ्लेशन के बाद. तो मैं फिर भी कहता कि नहीं, इट्स लाइक तब कह सकते हो कि अब फ़र्क आ गया. पर मैंने इतना ऑब्ज़र्व किया है उस साइड पे भी, मैं कभी खुद पाकिस्तान विज़िट नहीं मैंने किया, लेकिन मैंने इतना ऑब्ज़र्व किया है कि इतने भी कोई उनके ये जैसे ट्रकों के पीछे आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह बनाते हैं लोग, आटे के लिए भाग रहे हैं ये वो, ऐसे एक आधे दो इंसिडेंट हुए होंगे कहीं. पर ऐसा नहीं है कि रोज़ ही उनकी कंट्री में भूखमरी से लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं है. हमें दुश्मन की दुख में इतना खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा सत्य से नाता टूट जाए. हाईएस्ट वैल्यू सत्य है दुनिया में. तो कोई ऐसे भी बुरे हालात नहीं है. फॉर सम रीज़न समहाउ दे आर सस्टेनिंग, राइट. सच में गरीब कंट्रीज है भाई अफ्रीका की, जहाँ से फ़ोटोज़ आती हैं लोग बच्चों के पेट फूले हुए हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं, यमन, वहाँ पे सच में तो उस तरीके की सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में. आप कभी भी कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, कोई भी कुछ भी उठा के देख लो पाकिस्तान का, सिटी वॉक्स के व्लॉग्स होते हैं ये वो, भाई रौनकें लगी हुई हैं, लोग मज़े कर रहे हैं और सही है, वैसा ही होना चाहिए. देखो भुखमरी थोड़ी और हाई लेवल की उनके एक कंट्री और आगे अफ़गानिस्तान में है. ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि आपकी पड़ोसी कंट्री में आपातकाल आ जाए यानी कि अकाल पड़ जाए, क्योंकि लोग पोर इन होंगे फिर वो आपकी कंट्री में. ये एक सत्य है दुनिया का. और अगर आप लोगों को लगता है कि वो उन लोगों को रोक लिया जाएगा, कितने टाइम तक कितने लोगों को रोक लोगे आप? बांग्लादेश से करोड़ बंदा इंडिया में आके रह रहा है, कितनों को रोक लिया हमने. रोज घुसपैठ होती है रोज. बंगाली नहीं कहना चाहिए, एक बंदा गुस्सा हुए थे. बंगाल से जो व्यूअर्स हैं, बंगला व्यूअर्स जो हैं, वो मैसेज पे मैसेज भेजते हैं कि कैसे उनके ही बंदों ने, उनके ही लोकल नेताओं ने 30,000, 35,000, 45,000 ले लेके बंदों को घुसाया अंदर. तो उसको रहने देते. Because in 20 years, India will be a high-income economy, and I hope Pakistan will continue down this path, and the economic, political, and social ruin. हाँ, तो 20 ईयर बाद का देखेंगे यार. 20 ईयर में शाम भाई, 20 ईयर में बहुत कुछ हो जाता है. ठीक है, 20 ईयर में बर्लिन वॉल फॉल हो जाती है, समझ रहे हो आप? That this belief in the two-nation theory will bring to them will undoubtedly tear the country apart. That way, we will get. एक बात मैं और बता देता हूँ, ये जो आर्मी चीफ है ना पाकिस्तान की कंट्री में, एज एन ओवरऑल इनका कोई खास सपोर्ट नहीं है ऑन अ सीरियस लेवल अगर बात की जाए. इनफैक्ट
ये एक तरीके से एक डेस्परेट सिचुएशन में है ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ की बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ जो इन्होंने किया है, जो कि ऑफ कोर्स जिसमें इनका भी हाथ है, इस वजह से इनके बहुत ज़्यादा अनफेवर में है। इनफैक्ट आर्मी की जो रेपुटेशन जो इतने सालों तक वहाँ पे थी, जो कि पूरे पाकिस्तान का शायद एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी पब्लिक में, वो भी इन्होंने बेच खाई। अब वो क्यों थी, क्या थी, अब इन्होंने प्रोपेगेंडा कैसा कर रखा था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है, तो ये भी आप बात रखो कि ये जो बातें निकल रही हैं ना, ये डेस्परेशन की बातें भी हैं। POK back without any bloodshed, Balochistan can be a free country and join an EU-like system with India. The divided Pashtuns can finally be united under one greater Afghanistan, and the superhighways that will pass through Gilgit-Baltistan into Afghanistan will hopefully make both India and Afghanistan very rich. Meanwhile, the Pakistanis can take a great amount of pride in the two-nation theory and the superiority of Islam while begging the IMF for their 3700th loan. Now look, the Aman Ki Asha people, that's an incorrigible punch. I don't think they can stop living in denial. Denial is what's keeping them going. But I'm glad that a critical mass of Indians are now not living in denial. I'm glad that people see that the two-nation theory is real and it still shapes Pakistan's national character. Secondly, India must take pride in building its wealth and its civilization. I also think one of the reasons why the Pakistani general had to come out and make such a speech is because there are plenty of YouTube street interviews these days where you'll find every maybe third or fourth Pakistani saying something positive about India, about its economic development, and वो सारी वीडियोस फेक होती हैं बाय द वे। how the world is now starting to respect India. Now see, that's not good for the Pakistani army, because what's next? A feeling of remorse over the partition? Now if that happens, that's really going to suck for the Pakistani army, whose entire business model depends upon hatred of India and the hatred of the Hindus. So I'm very happy with the statements of the Pakistani general, and I hope Pakistan continues on this path. And so does the future generations of Pakistan. Because that way lies the ruin of Pakistan, and that is good for India in the long run. And I want to ask you, what do you make of this statement? What is your favorite "Yo Pakistan so poor" joke? Let me know in the comment section down below. I will ओके, वीडियो ख़त्म हो गई है। वो जोक मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो गुड टेस्ट में नहीं लगता। अगर मान लो कोई बंदा गरीब भी है, कोई बंदा तकलीफ़ में भी है, तो उसके बारे में वैसा कहना मेरे पर्सनल, जो मेरे माँ बाप ने जिस तरीके से मुझे बड़ा किया है, मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। स्पीच के बारे में मेरा ये सोचना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक डेस्परेशन की स्पीच है। कोई भी समझदार बंदा इस तरीके की बातें नहीं करता, स्पेशली आज के टाइम में, स्पेशली जिस हालात में उस व्यक्ति की कंट्री है। या तो बहुत हाई लेवल की कमी है ब्रेन सेल्स की, या कोई कांड करने के जुगा के फिराक में है। बस यही दो चार बातें हो सकती हैं। या बस किसी भी तरीके से अपने आप को मेन लीडर, मतलब वही कि हम हैं और हम एक बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, और तुम जो ये छोटे मोटे इमरान खान वगैरह जैसे लीडरों के पीछे अगर तुम आर्मी का विरोध कर दोगे तो तुम बहुत बड़ी ग्रेटनेस से तुम महरूम रह जाओगे। ये कोई उस तरीके की फीलिंग देने की एक डेस्परेट कोशिश है। लोग इस पे घंटे का ध्यान नहीं देते। और बाय द वे, वो जो वीडियोस होती है ना जिसमें बंदे वो खुल के रोड के ऊपर तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इंडिया की एक चीज़ गिना रहे होते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, वो भाई फेक होते हैं। उनको मत देखा करो। वो देखा करो, ये नहीं मुझे कहना चाहिए मत देखा करो, देखिए अगर आपको मज़ा आता है दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ऐसा करते हैं। उनको पता है कि अगर वो इस तरीके के वीडियोस पोस्ट करेंगे तो उनको व्यूज़ मिलेंगे, और व्यूज़ मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे यूट्यूब से। वो प्लांटेड लोग होते हैं। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का बबल ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो।